Hello students, today we are going to study about metals and non-metals. See students, as any other object, metals and non-metals, they both have two types of properties. One comes under the category of physical properties and second comes under the categories of chemical properties. See, you can see on your screen, you can see the metal, which you can see in silver, copper and gold form. And you can also see the non-metals, like you can see carbon in front of your screen, phosphorus, sulfur. These all come under non-metals. So we are going to discuss these both the categories in the detail. First we will work on the physical properties. See students, physical properties में हम लोग सबसे पहले metals या non-metals की physical state को discuss करेंगे. Then we will talk about the luster or the shining. Then we'll work on the color of the metals or color of the non-metals. After that we are going to discuss about hardness. What is more hard? What is harder, what is hardest, these all things we are going to discuss. Then it comes to malleability. It's something new for you guys. Ductility is also new. We are going to discuss these two properties in detail. Then we are working on thermal conductivity in this video. After that we'll work on electrical conductivity and sonority. It's very interesting. So now we are going to start with physical properties of metals and non-metals. See students, the first category we have taken as physical state. Metals, they are usually solid at room temperature. And you know what is room temperature? We count it between 23 to 25, 26 degrees Celsius in normal. Metals are usually solid. You can see the bell. You can see any other object made up of metal, iron bell, silver bell, gold bells are also available. You can see rings, bangles, chairs, stands. These all things are usually solid, which are made up of metal. But there is an exception. In front of you, we have shown mercury. This mercury is in the liquid state. This is a metal which is in liquid state. Children, हम लोग ना इस वीडियो के अंदर हर चीज का exception जरूर discuss करेंगे. So exceptions are equally important as the category or the physical property is important. ठीक है? तो metals are usually solid, but the exception is mercury, which is in the liquid state at room temperature. Where we are talking about, it is room temperature. And when we talk about non-metal, these are either solid or gas on the room temperature. But again we have exceptions. Exception is bromine liquid. Bromine is in the liquid state. Here we have a metal which is mercury in liquid state, and here we have a non-metal which is bromine in liquid state. After that हम लोग ये देख सकते हैं white phosphorus, this is solid, red phosphorus, this is solid, and here we can see iron bell, this is solid. And otherwise in the gas you can have the examples oxygen gas, hydrogen gas, nitrogen gas. These all are the gases form of non-metals. ठीक है students? So हम लोगों ने physical state को समझा with exceptions in metals and non-metals both. Now the next state we are going to work on is luster. Luster means a shiny surface. Luster is basically shining. If the metal contains shining, it is called lustrous. But non-metals usually do not contain, so they are non-lustrous. You can see metal is used as cutlery, metal is used as jewelry just because of the special character which is called luster. ठीक है, तो most of the metals have luster or shine because they are polished or they reflect light. तो कौन सी चीज में शाइनिंग होता है? जो भी चीज लाइट रिफ्लेक्ट करेगा उसमें शाइनिंग होगा. तो हमारा मेटेलिक सरफेस क्योंकि पॉलिश्ड होता है, स्मूथ होता है, इसलिए वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज लस्ट्रस और शाइनिंग. बट व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन metals usually have a dull surface as most of them occur as a powder or gas. है ना? आप अपने आसपास एयर में चेक करो, कोई शाइनिंग तो नहीं है ना, बिकॉज इसमें जो गैसेस हैं वो नॉन मेटल्स हैं अभी. लेकिन फिर भी हमारे पास एक एक्सेप्शन होता है. लाइक वी टॉक अबाउट ग्रेफाइट. ग्रेफाइट आपकी पेंसिल के अंदर पेंसिल लेड की तरह से यूज होता है. आपने कभी इस तरह से शेडिंग किया, एक थोड़ा सा स्पार्कलिंग फीलिंग आती है उसमें. Graphite is a form of carbon and carbon is a non-metal, right?
अच्छा, ये क्या हो गया, हम लोगों का लस्ट्रस वन हो गया। तो देयर इज एन एक्सेप्शन इन नॉन मेटल। वी हैव अ नॉन मेटल विच इज इन द फॉर्म ऑफ which is a form of carbon and it shows luster. So हम लोग हर property के exceptions को साथ साथ करते हुए चलेंगे. Next we are going to work on the color, physical property of color. तो most metals they are either silver और ग्रे, यूजुअली दे आर सिल्वर और ग्रे, ठीक है। बट हमारे पास यहाँ पे भी एक्सेप्शंस है। आपने गोल्ड देखा है, गोल्ड ज्वेलरी येलो कलर का होता है। कॉपर को आपने देखा है, कॉपर इज रेड ब्राउन। सो वी हैव दीज एक्सेप्शंस इन द मेटालिक कलर्स। मोस्टली मेटल्स हमारे सिल्वर या ग्रे होते हैं। इवन इफ यू टॉक अबाउट प्लैटिनम, यू टॉक अबाउट आयरन, यू टॉक अबाउट सिल्वर, इन सबके कलर व्हाइटिश ग्रेइश होते हैं। बट गोल्ड एंड कॉपर वी हैव दीज एज एक्सेप्शंस। Now let's talk about non-metals. आपको कहीं आसपास एयर में ऑक्सीजन का कलर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं देता है ना, बिकॉज ऑक्सीजन इज कलरलेस। और यूजुअली सारे नॉन मेटल्स कलरलेस होते हैं, बट हमारे पास कुछ पर्टिकुलर नॉन मेटल्स ऐसे हैं जिनके कलर्स हैं। अभी क्लोरीन गैस की बात करते हैं। क्लोरीन गैस इज ग्रीन येलो, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। नाउ ब्रोमाइन, इट इज अ ब्राउन लिक्विड। आपने ऑलरेडी भी देख लिया था, हमने फ्यू स्लाइड्स बैक इसके बारे में बात किया था। एंड आयोडीन, दिस इज वायलेट सॉलिड। आयोडीन वायलेट कलर का होता है। तो हमारे पास मल्टीपल कलर्स प्रोवाइडेड हैं नॉन मेटल्स की कैटेगरी के अंदर। दैट इज क्लोरीन का कलर अलग है, ब्रोमाइन का कलर अलग है, आयोडीन का कलर अलग है। एंड आप ये देखो, इन तीनों की स्टेट भी अलग है। क्लोरीन की स्टेट गैस है जो नॉर्मली नॉन मेटल्स की होती है। ब्रोमाइन एक्सेप्शनल लिक्विड है, नॉन मेटल लिक्विड। एंड आयोडीन इज नॉर्मल सॉलिड, राइट। तो हमने सब चीजों को साथ साथ हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हुए जाना है। नेक्स्ट इज हार्डनेस। माइंड में मेटल वर्ड आते ही सबसे पहले क्या आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रेंथेंड, हार्ड। तो दिस इज ट्रू, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर वेरी हार्ड, राइट। बट अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस। सोडियम एंड पोटेशियम, दे आर द सॉफ्ट मेटल्स। सोडियम तो ऐसे होता है जैसे आप क्ले को कट कर सकते हो ना, वो नाइफ से कट कर सकते हो, आराम से केक कटिंग करते हो, इतना इजीली कट हो जाता है सोडियम। तो सोडियम एंड पोटेशियम ये दोनों सॉफ्ट मेटल्स के अंदर आते हैं। अभी नॉन मेटल्स मोस्टली दे आर वेरी सॉफ्ट। आप गैस को कंप्रेस कर लेते हो, नॉन मेटल गैस है। लिक्विड को आप फ्लोइंग लिक्विड्स होते हैं, because they are very soft, but exceptions are always there. अभी हम बात करते हैं डायमंड की। डायमंड क्या होता है, जैसे हमने ग्रेफाइट का बारे में बात किया था ना, ग्रेफाइट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, ऐसे ही डायमंड भी फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। एंड यू नो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन द प्लैनेट। तो ये सबसे ज्यादा हार्ड है, एंड दो इट इज अ नॉन मेटल। So again, I told you in the beginning only, again and again I am emphasizing on the things, exceptions to be learned, very important. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेलेबिलिटी की। ये थोड़ा सा आपके लिए न्यू है। हम सारी मेटल्स को ना शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे ये एल्यूमिनियम टिन शीट्स लगी हुई हैं। तो ये क्या होता है, हमने किसी भी मेटल को बीट किया हैमर की हेल्प से या मैकेनिकली उसको बीट किया और उसके बाद उसे शीट में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल गोल्ड की शीट्स कैसे यूज होंगी, आप ज्वेलरी में यूज कर सकते हो। बैंगल्स बनती हैं तो शीट किया जाता है गोल्ड को पहले। ऐसे सिल्वर भी यूज होता है, यूटेंसिल्स में भी यूज करने के लिए हमें शीट बनाना होगा। सोचो हमें ग्लास कैसे बनाएंगे, छोटा सा सिल्वर ग्लास हमें बनाना है तो ग्लास के लिए पहले शीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। ऐसे एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में यूज होता है, शीट्स में यूज होता है ना। आयरन का भी यूज ऐसे ही होता है, कॉपर एंड टिन एक्सेट्रा। टिन का तो आप लोग वो टिन्स यूज भी करते होंगे ना, टेट्रा टिन्स आते हैं कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल फिजी ड्रिंक्स के, तो वो सब टिन्स में आते हैं। कैसे होगा अगर वो मेलेबल नहीं होंगे, तो दे शो मेलेबिलिटी बिकॉज दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स, राइट। अभी हम लोगों के पास कुछ नॉन मेटल्स की बात करेंगे। नॉन मेटल्स को अगर हम चाहें भी तो उन्हें हम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। रीजन क्या होता है कि वो बहुत ब्रिटल होते हैं, इतने ब्रिटल होते हैं कि जैसे उन्हें बीट किया जाता है वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पे हमारा नॉर्मल कैटेगरी है कि जो हमारे मेटल्स हैं दे कैन बी बीटन इनटू द शीट्स, एंड नॉन मेटल्स दे आर सो ब्रिटल दे कैन नॉट बी ब्रिटल इनटू शीट। तो समझ में आ रहा है, ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी फिजिकल प्रॉपर्टीज की ऐसी आई है जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिला हमें, है ना। अब डक्टिलिटी की बात करते हैं। डक्ट मतलब वायर शेप, ये वर्ड ही वायर से निकला है।
तो डक्टिलिटी मीन्स एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हम किसी भी चीज को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स इनको हम इजीली वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। देखो गोल्ड की आप ज्वेलरी बनाते हो, वायरिंग ज्वेलरी होती है ना, आप सामने देख सकते हो पेंडेंट के ऊपर कितना अच्छा गोल्ड डिजाइनिंग, वायर डिजाइनिंग हुआ है। तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी कॉल्ड डक्टिलिटी। एंड आप कॉपर का वायर घर में यूज कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी पर्पज के लिए। So this is only possible when we are using it as the duct form. आपने टंगस्टन, अच्छा टंगस्टन आपको याद आया कुछ टंगस्टन सुनने से? बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है टंगस्टन का, तो वो कैसे बनता है? डक्ट बनाना पड़ता है ना हमें। एक मेटल है टंगस्टन, उसको हमें डक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन उस फिलामेंट को हम इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करेंगे। तो दैट वेज वी आर वेरी इजीली मेकिंग द थिंग्स आउट ऑफ दिस particular capability or the property called ductility of metals. Now think about non-metals. जो non-metals इतने brittle हैं जिन्हें हम sheet में convert नहीं कर सकते, तो हम उन्हें wire में कैसे convert करेंगे? So again another property without any exception. Most metals can be drawn into the wires. That means most metals show ductility. But non-metals are brittle and they cannot be drawn into the wire. This is for sure, right? Now we will work on the next property. This is thermal conductivity. Thermal means we are talking about heat. ठीक है? Metals are good conductor of heat. तो इसलिए उनको क्या करते हैं, कुकिंग पॉट्स में यूज करते हैं ना मेटल्स। तो कुकिंग पॉट्स की मेटल्स को क्या है, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स, वी आर यूजिंग इट फॉर द कुकिंग पर्पज। नाउ थिंक अबाउट कुकिंग पॉट्स के बाद अगर हम लोग बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स तो जनरली पुअर कंडक्टर्स होते हैं ना। हमने सारे, अगर गुड कंडक्टर होता, मानो अगर यहाँ पे गुड कंडक्टर होती, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% होती है, अगर वो गुड कंडक्टर होती तो कितनी सोलर रेज हम तक पहुंच रही होती, वुड वी बी एबल टू सर्वाइव? हम तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते थे उस हीट के अंदर अगर एटमॉस्फेयर हमारा गुड कंडक्टर गैसेस से बना होता। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर फॉर द थिंग्स। अभी डायमंड है, डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये आपको याद रखना है। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस भी है, गुड कंडक्टर भी है और हार्डेस्ट भी है। तो 3 कैटेगरीज हैं एक्सेप्शंस की जो डायमंड कवर करता है। ओके, Now we'll talk about electrical conductivity. Metals good conductor होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जैसे थर्मल कंडक्टिविटी गुड होती है इनकी, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी गुड होती है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल वायर्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स के अंदर हम लोग मेटल्स को यूज करते हैं। कॉपर वायर आर क्वाइट कॉमन, है ना। तो नेक्स्ट इज, अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नॉन मेटल्स की बात करें तो आपको क्या लगता है, ये गुड कंडक्टर होते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स होते हैं मोस्टली। अब सोच के देखो, अभी हम ना एक्सेप्शन की बात नहीं करेंगे। इमेजिन करो सामने एक पोल पर वायर में से स्पार्किंग हो रही है, और मान लेते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जो डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट एटमॉस्फेयर की, वो सब गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो स्पार्क तो वहां से सीधा आपके घर में आ जाता ना, हम सबको करंट लग जाता। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इससे ये प्रूव हो जाता है कि नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स। ठीक है, अभी हम बात करते हैं एक एक्सेप्शन की। ग्रेफाइट के बारे में हम ऑलरेडी एक बार बात कर चुके हैं, याद करो कहाँ पे किया था। ग्रेफाइट इज लस्ट्रस वन, इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज नॉन मेटल बट स्टिल इट इज लस्ट्रस। एंड इसी के साथ साथ एक और ध्यान रखेंगे, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, राइट। तो हम लोग 2 एक्सेप्शंस में अभी तक ग्रेफाइट को पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स नाउ, दैट इज सोनोरिटी। सोनोरिटी ना बहुत इंटरेस्टिंग है। टन खन, ये जो आवाजें आती हैं मेटल की ना, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक रिंगिंग साउंड, दिस साउंड इज स्पेशली फाउंड इन मेटल्स। जब भी उन्हें बैंग किया जाता है तो एक कैरेक्टरिस्टिक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, दिस इज कॉल्ड सोनोरिटी। जबकि नॉन मेटल्स के अंदर वो क्या होता है, डल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अभी हम लोगों ने विंड चाइम्स देखे ना, सबके अंदर कुछ ना कुछ मेटेलिक फॉर्म लगा होता है, जस्ट बिकॉज दे प्रोवाइड अ ब्यूटिफुल लवली रिंगिंग साउंड। तो इसीलिए हम विंड चाइम्स में मेटेलिक थिंग्स को यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ऑल 9 प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे सेफ।